Assalamu alaikum students and welcome to your biology class. I hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start our chapter number 6, enzymes. And today we will be having our very first lesson of chapter number 6, enzymes. The topic for today's online lesson is Introduction to Enzymes and Characteristics of Enzymes. Let's have a look on the learning outcomes of today's lesson. You will be able to define metabolism and differentiate between catabolism and anabolism. You will be able to define enzyme. You will be able to differentiate between substrate and product. You will be able to describe the concept of energy of activation and how it is lowered by enzyme. You will be able to describe the characteristics of enzymes. First of all, our first topic is metabolism. To have the understanding about metabolism, let's watch this video clip. Then we will discuss about metabolism. So let's watch this video clip. We eat, whether it contains proteins, carbohydrates, or lipids, all these are digested and converted into their simpler form in our body. Proteins are converted into the amino acids. Complex carbohydrates like starch, they are converted into simpler sugars, and lipids are converted into fatty acids. Now during this process, the energy is released in the form of ATP, and other energy rich molecules like NADH2 or FADH2, they are also formed and which can be used for different purposes. Some waste material like nitrogen compounds, CO2, phosphates and sulfates, they are also produced during this process. Such waste material is excreted outside the body by different ways. Now these simple molecules can be again used to produce different complex and large molecules which can play different role in our body. For example, enzymes, the hormones, the receptors, and even the hair and nails. So as you can see, whatever we eat, it changes from one form to the other. And in Greek language, the word change is called as metabolismos. And from this Greek word, the new term came into the existence in science, the metabolism. So metabolism can be defined as sum of the total of all these biochemical reactions occurring in a cell. And this interconnecting network of reactions are called as metabolic pathways. Metabolism can be classified into two categories: catabolism or catabolic reactions, and anabolism or anabolic reactions. Catabolic reactions are those in which larger and complex molecules are degraded into smaller and simple molecules. And during these reactions, energy is released in the form of ATP. For example, conversion of proteins into amino acids and conversion of lipid into fatty acids. A classic example of catabolism is the degradation of glucose molecule into pyruvate. Glucose is hexose sugar, that is, it is made up of 6 carbon, and pyruvate is made up of 3 carbon, that is triose. This degradation occurs in 10 stepwise reactions, which is known as glycolysis. And during this conversion, 2 ATP molecules are produced. Anabolism is exact reverse of catabolism. In anabolism or anabolic reactions, small and simpler molecules, they are converted into large and complex molecule. And during these kind of reactions, energy is consumed. In catabolism, energy is released.
and in anabolism, energy is consumed. For example, conversion of amino acid to keratin protein, which is present in the hair and nail. Another example is synthesis of glycogen or starch from glucose molecules. So this was all about the basic concept of metabolism. Thank you very much for watching. What is metabolism? Metabolism is the set of biochemical reactions. Biochemical reactions का सेट है, यानी कि तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, दे ऑल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. Metabolism means all the chemical reactions that are taking place in the life of a living organism in order to maintain the normal functioning of the living organism. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हमारी बॉडी में हर वक्त मिलियंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं. वो रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन के लिए. ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए देयर आर millions of reactions that are taking place in our body. All the biochemical reactions that are taking place in our body are collectively called as metabolism. Metabolism has two types. Now, these types are anabolism and catabolism. As we have watched about the two types of metabolism in the video. Anabolism में वो बायोकेमिकल रिएक्शंस आते हैं जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया जाता है. तो जब किसी चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज का मतलब है किसी चीज़ की मेकिंग होती है तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फूड प्रिपेयर किया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, घर में कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई आप फूड कुक कर रहे हैं, तो फूड को कुकिंग करते हुए आपको बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है. किस तरह से कि आप अपना फूड कुक करें स्टोव पे और वो आपको गैस जो है एज अ फ्यूल काम करिए. फ्यूल इज द एनर्जी. बिल्कुल इसी तरह एनाबोलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रही है, इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होगा, एनर्जी यूटिलाइज होगी. द सेकेंड टाइप इज कैटाबोलिज्म. कैटा मीन कटिंग. इसका मतलब ये कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कटिंग होती है, उनका ब्रेक डाउन होता है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि जब हम फूड खाते हैं, जब हम फूड को इनटेक करते हैं, तो वो जो नवाला होता है उसकी स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होती है और फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है. So catabolism is a process in which large molecules are broken down into small molecules and energy is released in this process. हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं, दे आर बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड दे मे बी एनाबॉलिक रिएक्शन और दे मे बी कैटाबॉलिक रिएक्शन. सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. अब सबस्ट्रेट क्या है और प्रोडक्ट क्या है? Enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalysts and they speed up and regulate the metabolic pathways. Enzymes मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंजाइम जो है वो ऐड करें एज अ बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट क्या होता है? बायो मीन लाइफ और कैटलिस्ट जो है वो केमिस्ट्री की टर्म है. कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे. तो बायोकैटलिस्ट का मतलब है ऐसे कैटलिस्ट या ऐसे सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं और वो बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. तो मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है कि जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. उन केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को मेंटेन करने के लिए देयर आर एंजाइम्स. What are enzymes? Enzymes are proteins that catalyze. Catalyze mean they speed up the biochemical reactions. And the enzymes are not changed during the reactions. Enzymes reaction में इस्तेमाल होते हैं लेकिन enzymes उस reaction में change नहीं होते, बल्कि as it is जब product बनती है तो enzyme अपनी original form में restore होता है.
Next we have the two new terms, substrates and products. सबस्ट्रेट्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनके साथ एंजाइम काम करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिन पर एंजाइम काम करते हैं उनको कहते हैं सबस्ट्रेट। और जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है इनटू प्रोडक्ट। दिस इज एन एंजाइम, ठीक है, एंड दिस इज अ सबस्ट्रेट। ये एक एंजाइम है and this is the substrate. What is substrate? The molecule on which enzyme act. अब ये जो substrate है ये यहाँ पे इस तरह से आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। और अब जब ये अटैच होगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो एंजाइम है वो सेपरेट हो जाएगा। ये एंजाइम है, ये सेपरेट हो गया और साथ जो है आप बन जाएगी प्रोडक्ट। दिस इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज है जिसकी हमें जरूरत थी। और सबस्ट्रेट क्या था? सबस्ट्रेट फॉर द रिएक्टेंट टू विच एंजाइम एक्टेड। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, उन एटम्स को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम हमें एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन को रन करना इजी है क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। अगर रिएक्शन को रन करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इट मीन्स कि उस रिएक्शन को कैरी आउट करना डिफ़िकल्ट होगा। अगर एक रिएक्शन की फॉर एग्जांपल आपके पास दो रिएक्शंस है और एक रिएक्शन हो रहा है 20 जाउल में, 20 जाउल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दूसरा रिएक्शन 60 जाउल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो जो 20 जाउल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो रिएक्शन बहुत आसानी से होगा क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एंजाइम्स क्या करेंगे कि जो 60 जाउल एनर्जी वाला रिएक्शन था, अब बॉडी ने रिएक्शन तो 60 जाउल एनर्जी की जिसमें रिक्वायरमेंट है, बॉडी को उस रिएक्शन को भी करवाना है। उसके लिए क्या है कि एंजाइम्स है, एंजाइम्स वहां पर आएंगे और जो एक्टिवेशन एनर्जी थी दैट वाज 60 जाउल, उसको रिड्यूस करके 40 जाउल, 30 जाउल, 20 जाउल कर देंगे। यानी कि व्हाट एंजाइम्स डू, दे एक्चुअली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एंजाइम्स इस एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है? बॉडी का फायदा होता है, डेफिनेटली बहुत सारी हमारी जो यूजफुल एनर्जी है वो बच जाती है और उसको हम डिफरेंट रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। Now let's watch a video clip on activation energy. Let's watch this video. While watching the video, please take your notebook and pen and note all the important points. After watching the video, we will discuss again how activation energy is important for us. Let's watch the video. Reactions that occur in your cells do not occur spontaneously. Instead, cells rely on proteins called enzymes to kickstart chemical reactions and speed them up, enabling cells to get the most out of the energy sources available to them. In fact, if it weren't for enzymes, chemical reactions would proceed too slowly to support life. This graph illustrates how enzymes speed up chemical reactions. Remember that in a chemical reaction, the reactants interact to form a product. The chemical reactants for this example are shown on the left, and the products on the right. The wall that separates them represents the activation energy. You can think of this wall as an energy speed bump. The larger the bump, the slower the reaction. The yellow speed bump represents a chemical reaction without an enzyme, and the orange speed bump represents the same reaction with an enzyme. As you can see,
The orange speed bump is a lot lower. This is because the enzyme acts to physically bring the reactants together. By doing so, it increases the efficiency of the reaction and lowers the amount of energy needed for the reaction to occur. Since less energy is required, the reaction occurs at a faster rate. Notice that the enzyme does not influence the energy level of the reactants or the products, but only the amount of energy that is required during the process of the chemical reaction. Without the use of enzymes, many of our body's processes, such as digestion and the processing of nerve impulses, would simply occur too slowly. The addition of enzymes, however, speeds up these chemical reactions, making life as we know it possible. जी, एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको रिड्यूस करते हैं. Now question is how enzymes lower the activation energy. Enzymes lower the activation energy in three ways. They may alter the shape of substrate and reduce the requirement of energy for this change. एंजाइम्स ने करना क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी अमाउंट को कम करना है. एंजाइम्स क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट की शेप को इस तरह से अल्टर करते हैं. अल्टर का मतलब है चेंज करते हैं कि अगर एंजाइम्स ना आए तो जो पहले शेप होती है सबस्ट्रेट की वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप को ऐसे चेंज करते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. Some enzymes do so by disrupting the change distribution on substrates. कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिसरप्ट कर देते हैं. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट है यानी कि रिएक्टेंट जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्ट करना है उसके ऊपर चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को यानी कि प्रेजेंस को डिसरप्ट करते हैं, वो चेंज करते हैं और इस तरह से क्या होता है कि उस जो एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी का रेट है वो वैल्यू डिक्रीज कर जाती है. Enzymes may also lower the activation energy by bringing the substrate in the correct orientation to react. Orientation यानी कि डायरेक्शन, एंगल जिसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम ने रिएक्ट करना है. कई दफ़ा एंजाइम उसको चेंज करते हैं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है. आप डायग्राम में देखें, अगर एक हमने रिएक्शन करवाना है और इस रिएक्शन में आप देखें कि दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज फ्री एनर्जी. अगर जो रिएक्शन है वो एंजाइम के बगैर होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये देखें कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. लेकिन अगर उसी रिएक्शन में एंजाइम को ऐड करा दें तो होगा क्या कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो हाफ हो जाएगी. सिर्फ इतनी सी हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इफ एंजाइम इज आल्सो एडेड इन द रिएक्शन. Now we will discuss the characteristics of enzymes. एंजाइम्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी इनकी क्या खसूसियात हैं. सबसे पहले देखिए 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विलहेल्म कुह ने फर्स्ट टाइम इसने एंजाइम्स के टर्म को यूज़ किया कि एंजाइम एक सब्सटेंसेस हैं और इनको एक ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और इनको एंजाइम्स कहते हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स यानी कि ये प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स मिलके बने हुए हैं अमाइनो एसिड से और एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं यानी कि ये एंजाइम्स हैं और हर जो एंजाइम है वो मिलके बना हुआ है प्रोटीन से और जो हर प्रोटीन है इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. सो एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. ये मैंने अमाइनो एसिड बनाए हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं एक प्रोटीन. Enzymes are made up of long linear means straight chains of amino acids. ये amino acids हैं, this is amino acids. That fold to produce a three-dimensional molecule. अब ये जो चेन है पहले बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है, उसके बाद ये फोल्ड होती है और जो मॉलिक्यूल बनता है एंजाइम का वो 3 डायमेंशनल होता है यानी कि 3D. इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है जैसे आप सर्कल जो है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, इसी तरह से जो एंजाइम है वो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है.
एंजाइम्स का काम क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के रेट को मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू द रिएक्शंस जिनमें एंजाइम ऐड नहीं किया होता। अब आप ये देखिए कि एंजाइम को हम कैटलिस्ट भी कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं केमिस्ट्री में और एंजाइम कहते हैं बायोलॉजी में। तो कैटलिस्ट का मतलब और एंजाइम का मतलब सेम है। कैटलिस्ट का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, एंजाइम भी यही काम करता है। तो कैटलाइज्ड रिएक्शन का मतलब होगा जिस रिएक्शन को स्पीड अप किया गया हो। इसी तरह से अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का मतलब है वो रिएक्शन जिस पे कोई कैटलिस्ट या कोई एंजाइम काम ना कर रहा हो। तो अगर एंजाइम किसी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन पे अटैक करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो रिएक्शन रेट इंक्रीजेस मिलियंस ऑफ टाइम्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में अभी हमने लेसन के स्टार्ट में बात की है। अब इस पे एक वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो क्लिप। Enzymes are proteins that speed up chemical reactions in the cell. A special region on the enzyme, called the active site, has a shape that fits with specific substrate molecules. An enzyme works by binding to one or more specific molecules called reactants or substrates. जी, देखा आपने कि किस तरह से एंजाइम के साथ कैसे कोई रिएक्टेंट ऐड करता है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। इसको मैं रिप्ले करती हूँ, उसको दोबारा से देखें। Enzymes are proteins that speed up chemical reactions in the cell. A special region on the enzyme, called the active site, has a shape that fits with specific substrate molecules. An enzyme works by binding to one or more specific molecules called reactants or substrates. हर एंजाइम के ऊपर एक साइट होती है, स्पेशल साइट। उस रीजन को, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है, इसकी एक्टिव साइट ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। अभी हमने बात की थी एक्टिव साइट की। एक्टिव साइट क्या, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कैटालाइसिस। कैटालाइसिस का मतलब क्या है, इन स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शन। दिस रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इट रिकॉग्नाइजेस, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानती है, आइडेंटिफाई करती है, एंड बाइंड्स अ सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द रिएक्शन। यानी ऐसा नहीं होता कि एक्टिव साइट के साथ कोई भी सबस्ट्रेट आके लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा क्या कि एंजाइम्स जो है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। एक एंजाइम के साथ एक खास सबस्ट्रेट लगता है। फॉर एग्जांपल, एंजाइम ए के साथ सबस्ट्रेट ए लग सकता है, एंजाइम बी के साथ सबस्ट्रेट बी लग सकता है या B1 लग सकता है, एंजाइम सी के साथ सबस्ट्रेट सी लग सकता है या C1 लग सकता है। हर एंजाइम के साथ हर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। अब आप इस डायग्राम को देखें, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। ये एक सबस्ट्रेट है जिसने आके इस एक्टिव साइट पर अटैच होना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट अटैच हो गया है, और उसके बाद देखिए एंजाइम जो है वो अलग हो गया है, और उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। देखिए पहले सबस्ट्रेट की शेप ये थी, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। ये जो आपको स्क्वायर शेप और सर्कल शेप नजर आ रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट। अब एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, बल्कि एंड पे एंजाइम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। एंड नाउ एक्टिव साइट, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एंजाइम के ऊपर एक रीजन होती है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट अटैच होता है, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। नेक्स्ट इज इनहिबिटर और एक्टिवेटर। अब इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। इनहिबिटर वो होते हैं जो कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन को रोकते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। और एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो
केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट का मतलब है फास्ट करते हैं। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड, इनहेंस का मतलब है इंक्रीज्ड, और डिमिनिश्ड या डिक्रीज्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। ऑब्वियसली सेल ने देखना है कि अगर केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा करवाने की नीड है, उनके प्रोडक्ट की ज़्यादा नीड है, तो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर केमिकल रिएक्शन अभी करवाने की नीड नहीं है, प्रोडक्ट को स्पेसिफाई सेल को नहीं चाहिए, तो फिर सेल जो है वो एंजाइम्स को कम प्रोड्यूस करेगा। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इनहिबिटर या एक्टिवेटर से कंट्रोल की जा सकती है। कंट्रोल का मतलब है रेगुलेट, यानी इनहिबिटर क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को आके इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। और एक्टिवेटर क्या होता है, एक्टिवेटर वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को आके एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट का मतलब है इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टर्म इज द कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, हमें पता है कि एंजाइम्स तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ आके अटैच होता है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर इज द एनी नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज बीइंग अटैच्ड टू द एंजाइम। कुछ एंजाइम्स में कोफैक्टर की जरूरत होती है, कुछ एंजाइम जो होते हैं दे डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। अब हम लोग सबस्ट्रेट पे, प्रोडक्ट पे, कोफैक्टर पे अगेन इस वीडियो में देखते हैं व्हाट आर कोफैक्टर्स। It is called a holoenzyme. Cofactors can be organic or inorganic and allow enzyme active sites to be more versatile than if they were only composed of amino acids. Organic cofactors can be either prosthetic groups or coenzymes. Prosthetic groups remain tightly bound to the enzyme. Coenzymes are frequently consumed and recycled during the catalytic reaction. Some types of coenzymes can be called co-substrates, basically substrates that are loosely bound to the enzyme. Coenzymes are often small organic molecules that transport chemical groups, such as ATP or NADH, from one enzyme to another. Some vitamins, such as vitamins A, C, and B12, function as coenzymes. Unlike many other catalysts, enzymes are specific. They only bind specific substrates, they only catalyze specific reactions, and they only जी, कोफैक्टर्स हमने देखा है कि ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक मीन मेटल लाइंस एंड ऑर्गेनिक मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट ना हो। इनऑर्गेनिक एग्जांपल है मेटल लाइन, ऑर्गेनिक एग्जांपल है फ्लेविन एंड हीम। प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर तो कोफैक्टर टाइटली बाउंड है, बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है एंजाइम के साथ, तो उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोफैक्टर टाइटली बाउंड नहीं है बल्कि लूजली अटैच्ड है तो उसे कहते हैं कोएंजाइम। इनका काम क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट द केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अदर। सम एग्जांपल्स आर विटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फॉलिक एसिड। एंजाइम्स वर्क इन स्पेसिफिक ऑर्डर। कैसे एंजाइम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं, लेट्स वॉच दिस वीडियो क्लिप। specificity and are able to bind to more than one kind of substrate, display enzyme promiscuity. As just mentioned, enzymatic reactions only produce specific products. Enzymes don't allow unproductive side reactions to take place, so no unproductive waste products are generated. This is important. Imagine if each step of a reaction had a 90% yield and there were 10 steps. In the end, you would only get a yield of 34.9%. In addition, you'd have tons of potentially harmful waste products. There are two important hypotheses about how enzymes work. The lock Enzymes work in specific order, creating metabolic pathway. Metabolic pathway mean metabolism. In metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to next enzyme. Okay. एंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक ऑर्डर में काम करते हैं। कैसे, एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट एंजाइम के लिए रिएक्टेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एंजाइम, दिस इज एंजाइम नंबर 1,
ठीक है, इसने जो है वो रिएक्ट किया अपने एक सबस्ट्रेट के साथ, और जो सबस्ट्रेट है उसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल ए। अब हुआ क्या कि आफ्टर द रिएक्शन एंजाइम जो है वो उसी तरह से रिस्टोर हो गया E1, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है C। दिस इज अ प्रोडक्ट C। अब ये जो प्रोडक्ट है C, ये क्या होगा कि जो नेक्स्ट एंजाइम है उसका नाम हम फर्स्ट कर रख लेते हैं E2। ये जो प्रोडक्ट है ये नेक्स्ट एंजाइम का सबस्ट्रेट होगी प्लस C। तो एंड पे क्या होगा, फिर जो एंजाइम है वो रिस्टोर हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगी फॉर एग्जांपल D। हो सकता है ये जो प्रोडक्ट है D ये किसी और एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट हो। एक एंजाइम की प्रोडक्ट नेक्स्ट एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट हो सकती है। Now let's summarize what we have learned today. We learned about metabolism. All the chemical reactions taking place in our body are called metabolism. Then we studied about enzymes. Enzymes are the proteins that speed up the chemical reactions, and they are not changed during the reaction. Then we learned about active site. Active site is the most important site, a small region on the enzyme molecule that is directly involved in catalysis is called active site. Then we read about cofactors. Cofactors क्या होते हैं? Non-protein molecules को cofactors कहते हैं. There are two types of cofactors. They may be organic or they may be inorganic. इसके अलावा अगर cofactors tightly bound हो तो उनको prosthetic group कहते हैं. अगर cofactors tightly bound ना हो तो उसको coenzyme कहते हैं. So this was all about today's lesson. I hope I have communicated all the points in a well manner. What you have to do, you have to read the whole lesson from the textbook. If you have any ambiguity, then you can rerun the video. After that, you will solve the given worksheet. This was all about today's lesson, and this is time to say you Allah Hafiz until we meet in the next lesson. Till then, Allah Hafiz. Stay home, stay safe.